Good morning, students. Your last video is going your part of civics, lesson number 2. Discrimination exists in our society. Discrimination exists in our society. What is discrimination? It means that make a distinction between people on the basis of class or race, religion, gender, and age, color without regard to individual merit. It is known as discrimination. भेदभाव ये कि मतलब कि परवाह किए बिना भेदभाव का मतलब ये होती है व्यक्तिगत योग्यता की परवाह किया बिना वर्ग, जाति एंड क्लास, रिलीजन, जेंडर, लिंग, आयु और रंग के आधार पर लोगों के बीच अंतर करना है. It is means known as discrimination. Okay. In our country, many sections of the society are discriminated against. हमारे देश में समाज के कई वर्ग के साथ भेदभाव किया जाता है. Sometimes they are put down by not being allowed to participate in certain activities or taking up certain jobs. कभी कभी उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने या कुछ नौकरियों लेने की अनुमति नहीं देती थी. Sometimes they are put down by not being allowed to participate in certain activities or taking up certain jobs. Often, a certain category of people are not allowed to live in a particular neighborhood. अक्सर एक निश्चित श्रेणी के लोगों के किसी विशेष पड़ोस में रहने की अनुमति नहीं होती है. ये कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन. ओके. They are not allowed to equal privilege as others in society and are not even allowed to enter the certain religious places. देखो, उन्होंने समाज के अन्य लोगों के समान विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और उसको कुछ धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं देती है. Another point that it is clearly indicates that certain section of people are suppressed and not allowed to participate in social functions or banned from entering and public places. Discrimination is based on several reasons. भेदभाव को अलग अलग कारण होती है. For example, inequality of resources often leads of discrimination. Next, what is inequality? असमानता क्या है? Inequality means to consider other person inferior. It means consider other person inferior. Okay. एक व्यक्तियों को हीन समझना, it is known as inequality. Okay. One example, the people from weaker section of society do not have the resources to meet their basic needs like food, cloth and shelter, etc. One economic difference is there. Poor people do not have the resources to meet their basic needs like food and shelter, clothing. They experience discrimination everywhere how they are poor. बिकॉज गरीब लोगों के पास भोजन के लिए या आश्रय और कपड़ों जैसे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास कुछ संसाधन नहीं है. वे हर जगह भेदभाव का अनुभव करते बिकॉज दे आर पुअर. society does meet their basic needs for like food, clothing, shelter. They are get discriminated against such offices, school, hospital and other public places are they are भेदभाव करते. Other
देखो इन आवर सोसाइटी सर्टेन ऑक्यूपेशन आर कंसिडर्ड मोर रेस्पेक्टेबल दैन अदर्स। हमारे समाज में कुछ व्यवसायों को दूसरे की तुलना में अधिक रेस्पेक्ट माना जाता है, लाइक प्रीस्ट आर प्रीस्ट इन द टेम्पल्स हु आर कंडक्ट द ceremonies or religious teaching or so is called upper considered caste। कुछ लोगों को अपन कहते हैं सोसाइटी के अंदर अपर caste। In ancient times person caste determined their occupation as per the Indian caste system। community were placed hierarchical importance। कुछ सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों को ऐसे अपर caste कहते हैं because of some priest are and occupation the temples and other religions called upper caste। That is means that the groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchable। okay, कुछ लोगों को सोसाइटी के अंदर अपर कास्ट एंड कंसिडर्ड सुपीरियर टू द रेस्ट, सुपीरियर टू द बेस्ट मतलब बाकी लोगों को अपन बेहतर माना जाता है। एंड कंसिडर्ड इन्फीरियर मीन्स लोअर कास्ट, सामाजिक हीन माना जाता है। एंड लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट दैट इज द बॉटम वर कॉल्ड लोअर कास्ट एंड कंसिडर्ड socially inferior and hence untouchable। what is means untouchable? the groups of who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and had called मतलब जिन समूहों को एक सीढ़ी के नीचे रखा गया था उन्हें अयोग्य के रूप में देखा गया और अच्युत कहा गया। एंड लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट example and the lower caste they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well and they were not allowed enter the temple। उसको अपर कास्ट के घर को भी उनको आने नहीं देते हैं, कुछ टेम्पल को भी आने देते हैं। अदर apart from the caste based discrimination sometimes people also feel alienated in the society based on their religion। in a country like India which has regional, cultural, economic and religious diversity it is not uncommon to find discrimination based on one or more of these factors। जाति अतिरिक्त भेदभाव का एक हिस्सा है। कभी कभी लोग अपने धर्म के आधार पर समाज में अलग अलग महसूस करते हैं। भारत जैसे एक देश है, इंडिया इज आवर कंट्री, इन ए कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में जिसमें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, आर्थिक और अधिक कारकों को आधार पर भेदभाव का पता लगाना असामान्य नहीं है। एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वन मोर ऑफ दिस फैक्टर्स। मतलब भारत जैसे देश में जिसमें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और आर्थिक और अधिक कारकों के आधार पर भेदभाव का पता लगाना असामान्य नहीं है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द practice of untouchability has been declared illegal। Sadly caste system still exists in our society although it has become less rigid। मतलब हमारा देखो हमारा समाज में जाति व्यवस्था अभी भी मौजूद है। ओके, एंड आल्दो ये हम कठोर हो गया है। केस सिस्टम आल्दो इट हैज बिकेम लेस रिजिड। हमारे देश में अभी भी जाति व्यवस्था मौजूद है, ये हम बिल्कुल बंद करना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डिड इंडिया स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इक्वलिटी। Inequality has always plagued our society. Historically, the strong have always exploited the weak. The struggle of equality started from the pre-independence era। Okay? असमानता ने हमेशा हमारे समाज को त्रस्त किया है। हिस्टोरिकली रूप से मजबूत
हमेशा कमज़ोर लोगों को शोषण करता है। एक्सप्लॉइटेड, शोषण मतलब द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी स्टार्टेड फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस people not only fought against the British rule but also fought for equally in their own society. Okay, स्वतंत्रता के पहले के युग से समानता के लिए संघर्ष शुरू किया पीपल ने। The people, women, peasants and people from marginalized sections of society fought against the discrimination they had faced for generation. मतलब वुमन, औरत लोग और पेसेंट्स, किसान लोग समाज के हाशिए के तबके लोगों भेदभाव के खिलाफ लड़े। एंड वुमन फॉट for the right to education. People from marginalized sections of society organized themselves to gain entry into temples. मतलब क्या है, उन्होंने हर चीज़ में लड़ाई किया और हर तरीके से ये पीड़ित गए। वुमेन्स में शिक्षा अधिकार के लिए, बच्चों को शिक्षा अधिकार के लिए लड़ी थी। समाज के हाशिया के वर्ग के लोगों ने टेम्पल में प्रवेश पाने के लिए खुद को संगठित किया है। वुमेन्स एंड वुमेन दमसेल्फ एंट्री टू टेम्पल्स, खुद को टेम्पल में, मंदिर में मतलब प्रवेश करने के लिए खुद लेडी थी। ओके, एंड द वाइल पेसेंट्स एंड ट्राइबल पीपल फॉर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द ट्रैप ऑफ मनी लैंडर्स। मतलब जबकि किसानों और आदिवासी लोगों ने खुद को साहूकारों को जाल से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वर अवेयर ऑफ सच इनइक्वालिटीज। दे केप्ट दिस माइंड while drafting the Constitution of India. The Indian Constitution treats all citizens. Okay, स्वतंत्र भारत के नेता ऐसी असमानताओं को अवगत थे। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने सभी सिटीजन, सारा नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। भले and they kept in mind the while drafting the Constitution of India, the Indian Constitution treats all of citizen. Okay, and equally irrespective of caste, religion and economic background. Okay, जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद अस्पृश्यता अवैध है। Untouchability is illegal and people to free work and live anywhere they want to. और लोग काम करना चाहते हैं और कभी भी रहना चाहते हैं। कहीं भी रहो, कोई जगह में जाके, कई जगह में जाके काम करो। अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपन को क्या दिया है? आज़ादी दिया। As per our constitution, respect for diversity is important for ensuring इक्वलिटी। ओके, हमारे संविधान अनुसार समानता सुनिश्चित करने के लिए विविधता का सम्मान महत्वपूर्ण है। बिकॉज द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री है। ओके, इंडिया एक सेकुलर कंट्री मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब ये कि किसी भी धर्म का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र है। ओके, वाई इंडिया इज कॉल्ड सेकुलर स्टेट? इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. इट इज़ होम टू वेरियस रिलीजन्स सच एज हिंदू, क्रिश्चियन and Sikhism, Buddhism and Christianity. So India is called secular country. Our constitution declares that India is a secular country where equal respect is given to all regions. Okay, हमारा देश
इसका मतलब है कि हमारा धर्म का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र है। कई रिलीजन अपन चूज़ कर सकते हैं, किसी एक धर्म का पालन करने के लिए भी कोई अपवाद नहीं है। सभी धर्म राज्य के बराबर है और कोई राज्य धर्म नहीं है। ओके, देयर इज अ कंपल्शन ऑफ फॉलो एनी वन रिलीजन, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल टू द स्टेट and there is no state religion. Okay, despite this provisions, inequality exists in our society. We must strive to eradicate, मतलब इन प्रावधानों के बावजूद हमारे समाज में असमानता मौजूद है, हमें इसे मिटाना चाहिए, मतलब बंद करना चाहिए। वी मस्ट स्ट्राइव टू एराडिकेट मीन्स बंद करना, मिटाना चाहिए। ए केस सिस्टम मीन्स इनइक्वलिटी और अनटचेबिलिटी। ओके, डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव हमारे देश में से दूर करना। वी मस्ट स्ट्राइव टू एराडिकेट, वी कैनॉट अचीव दिस विदाउट स्ट्रगल अगेंस्ट आवर सेल्फ। ओके, मिटाने का ज़रूरत के लिए अपन प्रयास करना, कोशिश करना, हमें अपने खिलाफ संघर्ष के बिना इसे हासिल नहीं कर सकते। हम समानता प्राप्त कर सकते हैं। विदाउट स्ट्रगल टू अगेंस्ट आवर सेल्फ वी कैन अचीव इक्वलिटी ओनली इफ वी लेट गो फॉर आवर प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स। केवल तभी जब हम अपने प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप को जोड़ दें। डियर स्टूडेंट्स, योर civics lesson 2 completed. Thank you.